Welcome to Savidra Phule Resource Center. And my name is Prashant. I am a national coordinator at Savidra Phule Resource Center, currently studying at School of Oriental and African Studies in the University of London. And I welcome you at ASRC School of International Studies for an informative session on Erasmus Mundus, a joint master's student scholarship, which is called as the Erasmus Plus. And I welcome Advocate Bodhi Ramteke, who will be our guest today. Bodhi is an advocate, he's a researcher and social justice practitioner. Like us, we are a development practitioner. Bodhi is a social justice practitioner, and he's a Erasmus Mundus Scholar 2025. It's basically we write 2025, but he was scholar for last 2 years. And when I entered in UK, he went back to India. He has finished his masters in human rights. Basically, it's three different universities, but part of one program only. So he has finished his masters in human rights policy and practice from the University of Rompton, London, then University of Gothenburg, Sweden, and the Dosto University from Spain. He was also a former research associate at the Center for Research and the Planning, Supreme Court of India. He is also a founder director of Policy and the Law Network, PLN, and he has written his book Nyay, which literally means justice in Marathi. So I welcome Bodhi. And now let's talk a little bit of ESRC. What is ESRC? So you can see this is basically a people's movement. We have been working for last 1 year. Before that, we were working as the All India Independent Scheduled Caste Association, and ESRC is one of the most important intervention of the ISCA, All India Independent Scheduled Caste Association. So we believe that we should build a people's movement. So ESRC is not an NGO. NGO not in sense of how we take corporate funds and you work and you work for funders, not that kind of. So we distinguish ourselves from calling ourselves as the NGO, rather we call ourselves as the educational movement. So it's a people's movement. We are very much Ambedkarite in our approach. So every session, everywhere we ask people to contribute us because we don't take any fund from corporates. So your support keeps centers alive. So we don't charge students, we don't charge anybody to learn from ESRC. We have different centers. So few months ago we started in single room in Nagpur here, and now we are in Bhandara, Gondia, Chandrapur, Gadchiroli, in Nashik, Mumbai, Pune, and I'm personally working with the Parbani and the Solapur centers. So these are the people spaces. These are not just big buildings. Rather, they are just people spaces, tiny rooms in the bastis, maybe community halls in villages. There are many viharas that we have turned into educational spaces. Uh, our road ahead is basically we want to create centers in each district of Maharashtra and then in each district of India where the education has not reached. And we believe that we cannot do this alone. Since we call it a people's movement, SRC again receives zero fund from the government and the corporate. And we move because of the people like you who can contribute, who has ability to contribute in any format like time, treasure, talent. So you can contribute. And why we exist, because ESRC stand for a simple truth that the our children, when I say our is basically we say all those people who are pushed into margins, SCs, STs, OBCs, nomadic tribe, Muslim minorities, all those historically excluded communities, whose children deserve more than just survival. Like you can just survive, but they deserve dignity, opportunity, and the future. And that's why we work with these community. And ESRC is born out of the need of community. It's not just we are working for community, rather we are a community who is working for our own people. And you can stand with us, you can support Savidra Phule Resource Center, you can be a monthly contributor donor. We have our autopay system. You can search it here. You can simply go on revametafoundations.org. You will get the information, or you can scan this QR code. We will mail this PPT to you. This is ESRC, which is again inspired from Savitribai Phule. Uh, you can be friends of ESRC. We call it a friends of ESRC. So this is all about ESRC. Thank you so much, Prashant, for the introduction. And I'm I really appreciate SRC team for their efforts, not just in democratizing this higher educational opportunities, but creating a alternate space for our oppressed community. So I really appreciate and congratulate you all for
your new opening of your new resource centers across many districts. So thank you so much for also organizing this session and inviting me to speak on this Erasmus Mundus scholarship. आज हम Erasmus Mundus जो scholarship है उसके बारे में बात करेंगे. Along with Erasmus Mundus, I'll brief you about other European scholarships, but I'll go in detail only about Erasmus Mundus scholarship. So other scholarship will be covered by other people in upcoming sessions. So हम जानेंगे Erasmus Mundus. So Erasmus Mundus ये जो basically नाम है, so it's quite funny because when I got this fellowship, I was not aware about who was Erasmus and what does that name. It sounds really funny for me, and even for people. I used to tell that I got Erasmus Mundus scholarship. So let's begin with knowing about who was Erasmus. So Erasmus was a Dutch philosopher, as you can see on the screen. So he was from Rotterdam, and basically ये scholarship पे उनका नाम देने का एक ही मकसद रहा है कि वो हर जगह ट्रैवल करते थे, एंड ही बिलीव दैट जब हम ट्रैवल करते हैं अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग देशों में ट्रैवल करते हैं, उनके कल्चर्स को समझते हैं, सोशल सिस्टम्स को समझते हैं, उनके ऑपरेशंस के हिस्ट्री को जब समझते हैं, उन्हें लगता था कि इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग, और उस पे वो बिलीव करते थे. और आज जिस तरह से इरास्मस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और उसके पीछे उनका जो ओवरऑल विजन था एजुकेशन को देखने का, तो उसके बेसिस पर ही आज जो इरास्मस मुंडस हम स्कॉलरशिप देखते हैं, तो बेसिकली उसी स्ट्रक्चर पे आज इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप हमें दिखाई देता है. सो ये जो इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप है, इट्स वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप इन यूरोप. जैसे हम यूके में देखते हैं शेवनिंग स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ शेयर्ड स्कॉलरशिप है. वैसा ही अगर हम रेस्ट ऑफ यूरोप की अगर बात करते हैं, तो ये इरास्मस मुंडस से काफी एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, एंड इट इज फंडेड, टोटली फंडेड बाय द यूरोपियन कमीशन. सो यूरोपियन कमीशन इस सारे प्रोग्राम्स को फंड करता है. एंड सेकेंडली, this Erasmus Mundus offers you fully funded master's programs, और and mostly, और जो Erasmus Mundus programs होते हैं वो मिनिमम 1 year और 2 years. So mostly ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रोग्राम्स है Erasmus Mundus के, ये 2 years के होते हैं. So एक बेसिक आइडिया, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि एक क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना, और एक जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज का जो एकेडमिक रीचनेस रहा है और बाकी एकेडमिक एक्सीलेंस को कल्टीवेट करना, उसे बढ़ाना, ये ओवरऑल इरास्मस मुंडस फेलोशिप का एक ऑब्जेक्टिव है. तो पहले हम जानेंगे कि इरास्मस मुंडस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मेरा इट इज गोइंग टू बी a short presentation. I'll try to take as much as questions that you guys have. So हम पहले इसके स्ट्रक्चर को हम पहले जानेंगे. पहले मेरे प्रोग्राम से मैं शुरुआत करूंगा. तो मेरा जो प्रोग्राम था, it is Erasmus Mundus Masters in Human Right Policy and Practice. So ये Human Right Policy and Practice related ये प्रोग्राम था. तो जैसे आप बाकी सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे में हम आगे बात करेंगे, तो ये प्रोग्राम्स जैसे मैंने कहा कि मिनिमम 2 years के होते हैं. सो एक इम्पॉर्टेंट की फीचर अगर हम इरास्मस मुंडस प्रोग्राम का देखते हैं, तो वो ज्योग्राफिक फोकस है और क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज है. सो मेरा जो प्रोग्राम था मास्टर्स इन ह्यूमन राइट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, इट वाज इन 4 different countries and 4 different universities. So my first 6 months, my first semester was in University of Gothenburg, which is in Sweden, in Gothenburg, in Sweden. My second semester, 6th month, was in Spain, at University of Deusto in Spain. My third semester was in London at Roehampton University, and fourth was in Arctic University in Norway. So बेसिकली आप जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं इरास्मस मुंडस के, वो सारे प्रोग्राम्स इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज हो और आपको ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में आपको जाने का एक अवसर प्राप्त हो.
सो बाकी आप सारे जो प्रोग्राम्स देखते हैं वो उसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि अलग अलग आप किसी भी प्रोग्राम्स को देखें तो वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपको एक एक सेमेस्टर मिलेगा। सो ओवरऑल ये जो प्रोग्राम होता है ये डिजाइन मतलब मैंने जैसे कहा कि इट इज फंडेड बाय द यूरोपियन कमीशन। तो जो जिस जिस यूनिवर्सिटीज का उस विषय में एक्सपर्टीज होता है, लेट्स से इन माय प्रोग्राम University of Dios has expertise and have richness, academic richness in indigenous rights, indigenous studies में काफी एक अच्छा रीच एकेडमिक बैकग्राउंड उस इंस्टीट्यूशन को है। सेम विथ यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग। सो ये जो 4-5 ऐसे यूनिवर्सिटीज होती है ये मिलकर एक प्रोग्राम डिजाइन करती है और ये प्रोग्राम का प्रपोजल ये यूरोपियन कमीशन को भेजती है। सो ये मॉड्यूल डिजाइन करते हैं, प्रोफेसर्स कौन होंगे डिसाइड करते हैं और ये जो जो उन यूनिवर्सिटीज में उस सब्जेक्ट को लेकर जो एक्सपर्ट्स है वो सारे इस प्रोग्राम में होते हैं एंड कलेक्टिवली दे सेंड अ प्रपोजल टू द यूरोपियन कमीशन। सो कमीशन जब प्रोग्राम को अप्रूव करती है तब जाके ये प्रोग्राम सारे स्टार्ट होते हैं। नहीं तो हम बाकी एक दूसरा जो देखते हैं, एक नॉर्मल अप्रोच कैसा है कि हम यूनिवर्सिटीज के कोर्सेस में अप्लाई करते हैं। लेट्स से यू आर प्लानिंग फॉर एलएससी एंड यू वांटेड टू डू एन एलएलएम एट एलएससी, सो यू डायरेक्टली अप्लाई टू एलएससी। सो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर a group of universities come together and they start their own program. So इस तरह से एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। और जैसे मैंने ज्योग्राफिक फोकस का है तो हर प्रोग्राम आपको मिनिमम 3 to 4 कंट्रीज या फिर मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 6 भी कंट्रीज हो सकते हैं। तो ऐसे इस प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सो और इन सारी चीजों का जो एप्लीकेशन होता है तो वो हम यूनिवर्सिटी किसी स्पेसिफिक को नहीं अप्लाई करते हैं। सो लेट्स से कि अभी मेरा जो यूनिवर्सिटी मैंने कहा 4 यूनिवर्सिटी था, सो आई डोंट हैव टू अप्लाई फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। देयर इज अ कॉमन पोर्टल फॉर this program. So if you are applying for this program, Masters in Human Rights Policy and Practice, you have a common portal where you apply and do all the required procedures for this program. So ये बाकी जो प्रोसेस हम देखते हैं, जैसे मैंने एलएससी का उल्लेख किया, तो यू एलएससी में अगर जाना है तो डायरेक्टली अप्लाई टू दैट यूनिवर्सिटी, पर यहाँ वैसा नहीं है। सो एक अलग हमें अप्रोच इस यूनिवर्सिटी के ओवरऑल स्ट्रक्चर में हमें दिखाई देता है। सो और यहाँ के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि दे आर वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड इन इंटरडिसिप्लिनरी, क्योंकि मेरा भी जो प्रोग्राम था ह्यूमन राइट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम। सो जिस यूनिवर्सिटीज के जो एक्सपर्टीज थे, सो डियोस्टो हैज सॉरी the university in London, Roehampton, London, they have excellent faculties in theorizing human rights, so and social justice. So उस related जो professor थे, वहाँ के जो experts थे, so वो उस program का part थे। तो it's a very highly specialized, academically very rich and interdisciplinary program. You'll find across all these programs that are listed in this Erasmus Mundus catalog. So ये ओवरऑल हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो नेक्स्ट जो है कि हमें Erasmus Mundus की जब हम बात करते हैं और जब हम देखते हैं कि मोस्टली हमें लगता है कि इट इज ओनली फॉर सोशल साइंसेस या फिर लॉ या फिर डेवलपमेंट स्टडीज के लिए है, पर ऐसा नहीं है। Erasmus Mundus प्रोग्राम एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सो एग्रीकल्चर से लेकर ज्योग्राफी से लेकर हिस्ट्री से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर मैथ्स फिजिक्स, सो ये सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ये सारे प्रोग्राम्स आपको Erasmus Mundus ये जो स्कॉलरशिप होता है ये आपको ऑफर करता है। सो आप लिस्ट देख सकते हो, मैं आपको पूरी वेबसाइट का भी एक टूर आपको दे दूंगा कि किस तरह से वेबसाइट है, किस तरह के प्रोग्राम से, वो भी हम डिटेल में बाद में देखेंगे। पर एक ओवरव्यू ये ऐसा ही है कि हम आपको हर स्ट्रीम के यहाँ पर प्रोग्राम्स, आपको स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये जो Erasmus स्कॉलरशिप है, जैसे बाकी भी स्कॉलरशिप के बारे में आपने सुना होगा, सो ये फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है और
ऐसा भी कभी कभी होता है कि यू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप बट यू आर नॉट ऑफर्ड विद मतलब यू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम बट वी आर नॉट ऑफर्ड विद द स्कॉलरशिप. So there are many students they have to self fund their studies during this 2 years of master. So basically we all are today here to see how we can get this scholarship. So इसके बारे में ही हम फोकस करेंगे. सो ओवरऑल इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ये होता है कि पूरा जो 100% ट्यूशन फी होता है वो इसमें पूरा हमें कवर किया जाता है. Apart from that, you get around depend on program, but you get around 1,000 to 1,500 जो monthly stipend होता है वो हमें मिलता है. जो हमारी लिविंग कॉस्ट हो, फूड, एकोमोडेशन, बाकी ट्रांसपोर्ट के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं. थर्ड है ट्रैवलिंग अलाउंस हमें मिलता है. सो अगर मेरे प्रोग्राम की अगर बात करेंगे तो देयर वाज अराउंड 7,000 यूरोज, मतलब हम पकड़ लेंगे कि 6.5 लाख के आसपास ट्रैवलिंग अलाउंस एंड सेटलमेंट अलाउंस वो देते हैं. सो बेसिकली इंडिया से आप जब यूरोप आते हैं तो उससे पहले वो अमाउंट देते हैं और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 1 ईयर दे डिपॉजिट द रिमेनिंग अमाउंट इन योर अकाउंट. सो ओवरऑल इस तरह का ये होता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको हेल्थ इंश्योरेंस वहां पे मिलता है. जो हेल्थ फैसिलिटीज जो है यूरोप में दे आर वेरी वेरी कॉस्टली. सो एक हेल्थ इंश्योरेंस होने की वजह से ये बाकी चीजें कवर होती है. ये ओवरऑल स्कॉलरशिप के क्या बेनिफिट है उसके बारे में ये ओवरऑल ये स्ट्रक्चर था. तो अब हम देखेंगे ओवरऑल स्कॉलरशिप किस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं, क्या वेबसाइट है और आप इन प्रोग्राम्स को किस तरह से सर्च कर पाएंगे. तो हम मैं उस पर आपको लेके जाऊंगा. तो आप एक गूगल सर्च अगर करोगे इरास्मस मुंडस कैटलॉग 2025, तो इरास्मस मुंडस कैटलॉग आप अगर सर्च करोगे तब आपको अराउंड 200 प्रोग्राम्स आपको वहां पर दिखाई देंगे. सो दिस 200 प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड बाय यूरोपियन कमीशन फॉर द नेक्स्ट सेशन, that is 2026 to 2028. So ये जो प्रोग्राम है वो हर साल अपडेट होते रहते हैं. सो it is not necessary that you find one program this year and it's not necessary they'll offer that same program next year. But होता है कि मोस्टली अगर एक प्रोग्राम है तो वो एक 5 साल के लिए 10 साल के लिए होता है, पर उसके बाद उस प्रोग्राम में चेंजेस हो सकते हैं या फिर वो प्रोग्राम के लिए अगर फंड नहीं मिलता है तो वो प्रोग्राम को आउट भी किया जाता है. तो बेसिकली हर साल देयर आर अराउंड 200 प्रोग्राम्स. और जो मैंने कहा था कि जो सारी स्ट्रीम्स जो हमने देखी थी इंजीनियरिंग से लेकर हिस्ट्री से लेकर लॉ से लेकर वो सारी जो स्ट्रीम्स है वो मिलाकर हमें 200 वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम हमें यहाँ पर मिलते हैं. सो अगर हम देखते हैं तो हम जाएंगे कि फील्ड वाइज हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये सारे फील्ड्स है. सो यहाँ पर आई एम नॉट अवेयर अबाउट योर बैकग्राउंड, सो किस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, पर लेट्स से कि यहाँ पर अगर कोई लॉ के स्टूडेंट्स है तो हम देखते हैं कि लॉ प्रोग्राम का किस तरह से क्या क्या प्रोग्राम इस साल ऑफर किए गए हैं. सो यस, सो इस साल लॉ के लिए यहाँ पर दो मास्टर्स प्रोग्राम हमें दिखाई देते हैं. तो एक है मास्टर्स इन लॉ एंड इकोनॉमिक्स, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम लॉ इन इकोनॉमिक्स. और सेकंड इज इन मास्टर्स इन डेटा लॉ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड ये दोनों जो प्रोग्राम है दोनों 2 years मास्टर्स प्रोग्राम है. And the mobility of its I think it's same around 3 to 4 countries. So आप जब Erasmus Mundus कैटलॉग सर्च करोगे तब इन सारे जब आप प्रोग्राम्स में जाओगे तब आपको ये फिल्टर्स लगाकर आपको वो आपके जो इंटरेस्ट के जो फील्ड है वो आप सर्च कर सकते हो. सो अगर इस मास्टर्स की अगर हम बात करेंगे लॉ एंड इकोनॉमिक्स,
Mm, I think it's taking time. So ये चीज है, आप जब प्रोग्राम में अगर जाओगे तो उसमें आपको उस प्रोग्राम की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स आपको उस प्रोग्राम में मेंशन की गई हुई आपको दिखाई देगी. सो वो उस पर जो रिक्वायरमेंट्स है, ओवरऑल जो कॉमन रिक्वायरमेंट्स होते हैं उस पर हम बात करेंगे. पर हर प्रोग्राम का, सो it is not possible for me to go through all this 200 programs and check for their requirements, but I'll discuss about the common requirement that this programs have. So ये सारी चीजें हम देखेंगे. So let's see. I think it's still taking time. Presentation period. Yes. Okay, yes. So basically eligibility criteria, ये सारी Erasmus Mundus programs की अगर हम बात करेंगे तो इनका एक जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपके पास आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए. सेकेंडली, जैसे हम शेवनिंग में देखते हैं कि शेवनिंग want you to have 2 years of work experience, but यहाँ पे Erasmus Mundus में it depends on program. So कुछ programs आपको work experience मांगेंगे, पर majority of the program, I mean there is no specific how do you say, I mean work requirement, मतलब आपका experience requirement यहाँ पे कुछ प्रोग्राम में मेंशन किया है पर कुछ प्रोग्राम में नहीं किया है, बट दैट डजंट मीन कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए. मोस्टली जो प्रोग्राम्स में जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उनको मिनिमम 2 to 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होता है. पर मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस है उनको ही इन प्रोग्राम में उनका सिलेक्शन होता है, स्कॉलरशिप मिलती है. जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है पर इफ दे हैव गुड एकेडमिक एक्सपीरियंस और अच्छा रिकॉर्ड्स है, तो वो सारी चीजें बैलेंस की जाती है, वो सारी चीजें देखी जाती है. बट नॉट नेसेसरी कि तुम्हें अच्छी ग्रेड्स होना चाहिए, नॉट नेसेसरी कि तुम्हारा एक बहुत ही एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो इफ यू हैव अ गुड बैलेंस ऑफ बोथ ऑफ दिस, यू आर गुड कैंडिडेट फॉर दिस Erasmus Mundus प्रोग्राम. सो थर्ड है, जो हमें भी आप जो कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटीज में जब आप अप्लाई करते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है दैट इज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. सो जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज होती है वो आपको आइल्स जो एग्जाम होती है, IELTS आइल्स एग्जाम का स्कोर आपको वो मांगती है. सो बेसिकली यूके से यूरोपियन जो बाकी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज है उनका जो आइल्स का स्कोर का जो ये होता है डिमांड, वो लेस होता है इन कंपेयर टू यूके. सो मोस्टली प्रोग्राम्स आपको 6 या 6.5 का बैंड जो होता है आइल्स का, वो आपसे मांगते हैं. सो ये बेसिकली तीन एक मुझे लगता है रिक्वायरमेंट है इस स्कॉलरशिप का. और जो काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि सेकंड मास्टर्स के लिए हम एलिजिबल है क्या, तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल इफ यू हैव डन योर फर्स्ट मास्टर. सो यहाँ पर आपका जो प्रायर जो एजुकेशन रहा है, मतलब आपके मास्टर्स 1 हुए, वो 2 हुए, दैट्स वो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है. इफ यू हैव मास्टर्स स्टिल यू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. सेकेंडली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट thing is there is also no age limit to apply for this program. So एक फनी स्टोरी है, जब मेरे प्रोग्राम में हमारे कलीग डोनाल्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, so he is also LGBTQ activist in Australia. So some of his friends send him a link of this program to share with his daughters. So he have 2 daughters. तो उनको भेजने के लिए उनके कुछ दोस्तों ने वो मेरे जो प्रोग्राम था उसका लिंक उन्होंने भेजा था, बट ही हिमसेल्फ फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड एज ही वाज इन द एक्टिविज्म फॉर लास्ट 10 to 12 years, also in academics, he find the program very interesting and he applied for this. And उनका जो एज था, he is above 60. So इस प्रोग्राम में
एज इज नॉट अ बार. सो आप आपका बैचलर्स होने के बाद भी आप कर सकते हैं. आपकी कितनी भी एज हो, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. सो और अगर हम डिटेल में अगर बाकी रिक्वायरमेंट को जब हम देखते हैं, सो बेसिकली जो बाकी प्रोग्राम्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है कि फर्स्ट है मोटिवेशन लेटर. सो मोटिवेशन लेटर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस में. सो इट डिपेंड्स, मतलब उसका वर्ड लिमिट क्या होगा. You have to check that specific program to go into details of this requirement. So for my program the word limit was around 1200 words. तो बेसिकली मोटिवेशन लेटर आपको देना पड़ेगा, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं या मोटिवेशन लेटर भी उसे हम कहते हैं. सो मोटिवेशन लेटर कैसा है, क्या है, उसे कैसे लिखे जाता है, विल डिस्कस दैट लेटर. सो सेकंड इज हमारा सीवी और रेज्यूमे. सो हमें एक बहुत ही मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम फॉर यूरोपास फॉर्मेट. सो आप गूगल कर लीजिए या फिर प्रशांत यू कैन जस्ट पुट इट ऑन बॉक्स. So it is a kind of standard format of the European Commission. So it's not necessary to have your CV in that format, but many programs, many universities will ask आपके पास CV है बनाया है. You can Harvard's website में जा सकते हो, Oxford's website. Sorry, sir, but your voice is too breaking. Your voice is too breaking. Is this with only for me or all of us? Can you hear me properly, or is it only his issue? How about others? No, it's No, kind of breaking. it's okay with me also, but your voice is breaking in between. Okay. Can you hear me now? No worry, you can Hello? start now. I think It is you're audible now. Okay, all right. So, हाँ. So yeah. So Europass एक format होता है. So keep your CV ready in whatever format you have used to draft it earlier. जो भी आपके पास है, आप हार्वर्ड का वेबसाइट चेक कर सकते. You also check the website of Oxford University. They have their own kind of format to how to draft this CV. But वो आपको एक ready रखना ही है. और उसके साथ यूरोपास का जो मैं अभी बताया, तो यू विल फाइंड दैट यूरोपास का फॉर्मेट इफ यू जस्ट गूगल इट. सो ये दो आपको सीवी रेडी रखना होगा. अगर इन केस दे आस्क फॉर दिस यूरोपास फॉर्मेट, यू हैव टू अपलोड दैट. सेकंड इज एज आई मेंशन आईएलटीएस. सो उसके लिए आपको वो ग्रेड्स होना चाहिए. फोर्थ इज रिकमेंडेशन लेटर्स. सो most of this university will ask you for 2 recommendation letters, one from academics and one professional. So जिनके साथ आपका जिनके साथ आपने काम किया हो, let's say internships हो या फिर long term कुछ engagement उनके साथ रहा. If you are a law student and if you have worked with some lawyer, you can get a recommendation from that lawyer. So और academic का LOR की जब हम बात करते हैं, letter of recommendation, you can ask any of your professor who is very close to you and have taught you some good subjects, so of your interest. So ये सारी चीजें इन दो recommendations आपको इस process में आपको लगते हैं. Some might ask you more, so you have to check this specific programs that I have shown you already. आपको वहाँ जाना है and you have to just search for the specific program and have to check the requirements. And lastly, the most important is transcript. So ट्रांसक्रिप्ट हमें रिक्वायर्ड होता है जब हम इन सारी एप्लीकेशन प्रोसेस से जाते हैं. सो ट्रांसक्रिप्ट इज सिमिलर टू योर मार्कशीट, बट मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट नहीं है. जो हमारे पास वैसे मेरा 5 years का लॉ प्रोग्राम था. सो
जो मार्क्स शीट्स होते हैं, that is not your transcript, so you have to apply separately. You have to make an application at your university to get the transcript. So it's a kind of compilation of all this grades that you have from your first year to last year. So एक ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन करना होगा. आपका जो भी होम यूनिवर्सिटी हो, आप अभी पढ़ रहे हो या फिर जहां से ग्रेजुएट हुए हो, तो आप वहां पे एक एप्लीकेशन कीजिए और ट्रांसक्रिप्ट आपका रेडी रखिए. सो ये बेसिक और कोर रिक्वायरमेंट्स है सारे प्रोग्राम्स के लिए. पर कुछ जो प्रोग्राम्स है, लेट्स से देयर इज वन प्रोग्राम मास्टर्स इन एजुकेशन, दे विल आस्क यू टू राइट अ पॉलिसी पेपर ऑन एजुकेशन. सो ये कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हमें प्रोग्राम वाइज हमें देखने होंगे. सो यू हैव टू गो थ्रू द ईच प्रोग्राम ऑफ योर इंटरेस्ट, और आप उस प्रोग्राम को डिटेल स्टडी कीजिए, रिक्वायरमेंट देखिए, एंड इफ यू हैव doubts on that specific program, after this session you can get in touch with me anytime and on my email, and we can also arrange a call for one-on-one mentorship. So ये सारी चीजें भी हम देख सकते हैं. So you have to go in detail of every specific program. So कुछ programs आपको ऐसे academic ऐसे मांग सकते हैं, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको एकेडमिक ऐसे लिखना होगा, कोई पॉलिसी पेपर मांग सकता है. इट डिपेंड्स ऑन दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम. सो सेकेंडली एक इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ प्रोग्राम, सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर लेट्स से लॉ प्रोग्राम और फॉर द फॉरेस्ट गवर्नेंस प्रोग्राम, सो दे विल आस्क the requirement for that program will be like you should have the bachelor's in that specific field. So if you are applying for law, तो आपको you must have a bachelor degree in law. So कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो उस रिलेटेड ही आपको आपका बैचलर्स एजुकेशन या फिर आपका जो पहला मास्टर्स हुआ है वो उस रिलेटेड ही होना चाहिए. पर कुछ प्रोग्राम, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम्स लाइक दिस की इवन आपका अगर बैकग्राउंड कुछ भी हो, बट इफ यू हैव अ गुड वर्क एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, so they'll consider your application. So in my cohort, so I have a friend from Bangladesh. She did her bachelor's and master's in English literature, but she had 4 to 5 years of experience working with the Rohingya refugees in her country, in Bangladesh. So here उसका जो वर्क एक्सपीरियंस रहा ह्यूमन राइट एडवोकेसी को लेकर, ह्यूमन राइट एक्टिविज्म को लेकर, दैट काउंट. सो ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस था, तो उसमें उसका बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर होने के बावजूद भी मेरा जो लॉ का प्रोग्राम था ह्यूमन राइट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, सो उसमें उसका एप्लीकेशन कंसीडर किया गया. सो ये सारी चीजें हैं हमें, इसीलिए जो प्रोग्राम स्पेसिफिक आप जब पढ़ोगे, यू नीड टू कीप आई ऑन एवरी सिंगल वर्ड. आपको बहुत ही अच्छी तरह से वो सारे वर्ड्स को अच्छी तरह से वो पूरी वेबसाइट को आपको पढ़ना होगा. तो ये दो चीजें हैं जो आपको दिखाई देगी. अगर you have a good work experience and still don't have that academic, you don't have that academic requirement that they are asking, like having a bachelor degree in that specific program, you still can apply for that program. So ऐसे कई programs है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो. मोस्टली द प्रोग्राम्स जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स है और जो मोस्टली स्टेम के प्रोग्राम्स है, दे विल ask you for that specific academic requirement that you should have. If you're going for physics, you should have a bachelor's in physics, but still you have to check their specific requirements. So ये सारी चीजें हैं जो हमें इस एप्लीकेशन प्रोसेस में हमें ध्यान रखनी होगी. सो हम देखेंगे कि जो मैंने ये जिसकी बात की थी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर की जो हमने बात की थी, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके इस मोटिवेशन लेटर का कैसे होना चाहिए वो हम थोड़ा ब्रीफली हम देखेंगे. सो मेरे एग्जांपल से मैं स्टार्ट करूंगा कि अगर जब आप अपना मोटिवेशन लेटर लिख रहे हैं, तो फर्स्ट यू हैव टू ब्रीफली डिस्क्राइब योर सोशल, ज्योग्राफिकल, योर कास्ट और योर कल्चरल बैकग्राउंड, कि वहां से एक उनको दे शुड गेट
अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, व्हाट इज योर पोजिशनैलिटी. सो ये पोजिशनैलिटी उनको समझने के लिए यू शुड firstly start with your brief introduction, your positionality, your social, geographical and cultural background. So if I take example of my motivation letter, I start with who I am. I mean, what is my social background, what is my social positionality. I come from a caste oppressed community, and what is my geographical location. मैं गढ़चिरौली जिले से आता, which is considered as a red corridor and one of the aspirational district है. और काफी सारी जो उस एक जोग्राफिक लोकेशन को जो डिस्क्राइब करने वाली जो चीजें हैं, यू हैव टू वेरी ब्रीफली मींस 4 to 5 लाइंस तुम्हें ये सारी चीजें तुम्हें मेंशन करनी होगी. सेकंड, जब उसी जो फर्स्ट 2 पैरास है, फर्स्ट पैरा हम कह सकते, तो सेकंड उसको आपको रिलेट करना होता है कि हाउ दिस एक्सपीरियंसेस, your personal experiences or your positionality help you to develop a social understanding. See, I am now talking about my SOP जो मैंने ह्यूमन राइट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के लिए दिया था. सो तो आपका SOP can be different from mine. So if you're applying for different programs, but एक इस तरह का एक अप्रोच होना चाहिए. So second की मेरा जो positionality था, how it helped me to develop a social understanding, that kind of social consciousness. So also mentioned that my family is active in this anti-caste movement, tribal movement. सो ये जो सारा मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था, जो चाइल्डहुड में सारी चीजों का एक्सपोजर मिला, तो आई सॉ लॉ एज अ टूल फॉर सोशल चेंज एंड हाउ इट मोटिवेटेड मी टू परस्यू करियर इन लॉ और एजुकेशन इन लॉ. सो ये सारी चीजें आपको फर्स्ट पैरा में आपको डिस्क्राइब करनी होगी. तो ये सारी चीजें आपको ये होगा. So secondly you have to connect your background and learning. आप जो भी स्टडी कर रहे हो, लेट्स से आप डेवलपमेंट स्टडीज में कर रहे हो, एजुकेशन में आपका अगर बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, जो मैं प्रीवियस स्टडीज की बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट द प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग. सो तो मेरा अगर लॉ का जो बैकग्राउंड था, मेरा बैकग्राउंड आई कनेक्टेड इट विद माय डिसीजन टू स्टडी लॉ, जैसे मैंने अभी मेंशन किया था. तो इसके साथ साथ फिर देन यू हैव टू हाईलाइट योर की एकेडमिक अचीवमेंट एंड योर प्रोफेशनल जर्नी व्हाइल यू आर डूइंग योर अंडरग्रेड. सो मेरा एक्सपीरियंस मैंने वहां पे लिखा था, यू हैव टू गिव अ वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल्स. सो एंड स्पेसिफिक एग्जांपल्स विद इम्पैक्ट. सो ऐसे कई चीजें होती है जो हमने लॉ स्कूल के, जैसे मैंने मेरे लॉ स्कूल के दौरान मैंने की थी, दैट आई मेंशन्ड इट वेरी स्पेसिफिकली एंड द आउटकम ऑफ माय वर्क. सो मैंने ये सारी चीजें हाईलाइट की थी. लेट्स से कि कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल आपको 1 या 2 देने होंगे. सो मैंने कुछ, व्हेन आई वाज लॉ स्टूडेंट, आई फाइल्ड few PILs in the High Court and the National Green Tribunal, also approached the नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. सो गढ़चिरौली के कुछ केसेस थे जो प्रेग्नेंट वुमेन के क्वेश्चन थे, जिनको 22-23 kilometers during their pregnancy they have to walk for their regular checkups and for their deliveries, because they don't have access to road, they don't have access to healthcare system. So ये जो सारी चीजें, जो इश्यूज मैंने देखी थी बचपन से, एंड हाउ आई यूज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ और माय एक्सपर्टीज इन लॉ, माय नॉलेज ऑफ लॉ, टू गो बैक टू द कम्युनिटी एंड हेल्प टू द कम्युनिटी टू इंश्योर देम दैट दे आर गेटिंग द एक्सेस टू जस्टिस एंड देयर फंडामेंटल राइट्स आर बीन एनफोर्स्ड. तो ये ऐसे 2 मैंने एग्जांपल वहां से दिए थे, और जो इम्पैक्ट वहां से क्रिएट हो पाए उसके स्पेसिफिक मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए. तो आप भी जब आप काम करते हो, जब आप पढ़ाई करते हो, जब आपका बैचलर्स होता है, सो आई नो मेनी ऑफ यू हैव डन गुड इंटर्नशिप्स, यू आर पार्ट ऑफ सम गुड प्रोजेक्ट्स. सो वो इफ यू नॉट if you have not worked in let's say any specific kind of activism और इन सारी चीजें नहीं है, तो तुम्हारा जो एकेडमिक एंगेजमेंट रहा है, इंटर्नशिप्स हो, बाकी प्रोजेक्ट्स हो, तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होगी, एंड हाउ इट शेप योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू वांटेड टू परस्यू. और बाकी जो सारी चीजें थी, आपका ओवरऑल आपका अंडरस्टैंडिंग कैसे उस चीजों से शेप हुआ, ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी पड़ेगी. एंड
जैसे मैंने अभी भी ये कहा था कि मेरे लीगल एजुकेशन का इम्पैक्ट कैसे हुआ, एक टेंजिबल इम्पैक्ट कैसे रहा, वो मेरे एक लॉ के एसओपी में मैंने लिखा था। और ये सारी चीजों में नेटवर्किंग का क्या रोल रहा है आप में, और लेट्स से कि इस इन इन सारी पोजीशन एक्सपीरियंसेस में, वर्क एक्सपीरियंस में, हाउ यू स्टैंड एज ए लीडर, आप एक लीडर की तरह कैसे आप खुद को पोर्ट्रे करते हो, ये सारी चीजें आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस एसओपी को क्राफ्ट करना होगा, तभी जाके एक बहुत अच्छा एसओपी आप एक लिख पाओगे। सो और जो नेक्स्ट आता है, सो ये एक्सपीरियंसेस है, और ये सारी चीजें मतलब आपका फर्स्ट लाइन शुड कनेक्ट विथ योर लास्ट लाइन। सो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी एक मिक्स्ड ऐसे लिख रहे हो। आप जो प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस तरीके से आपको आपका सीवी क्राफ्ट करना होगा, आपका सीवी ड्राफ्ट करना होगा। सो ये दोनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो जिस प्रोग्राम के लिए फिर आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं ओवरऑल एजुकेशन के माध्यम से। सो और इट शुड आल्सो रिलेट विद द प्रोग्राम यू अप्लाइंग फॉर। सो ये सारी चीजें हैं। तो ये जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो प्रोग्राम आपका इट विल equip you with the specific skills or knowledge to achieve that short term or long term goal, or overall whatever you want to achieve in long term. So ये आपको उससे कनेक्ट करना होगा। और जो चारों यूनिवर्सिटीज है या 5 यूनिवर्सिटीज है, 3 यूनिवर्सिटीज है, यू हैव टू गो थ्रू देयर मॉड्यूल्स। सो ये सारे मॉड्यूल से आपको जाना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न द स्पेसिफिक्स ऑफ देयर प्रोग्राम्स, बिकॉज every universities have their own expertise, every universities have their own structure, they have their own different modules। तो ये मॉड्यूल से आपको बहुत थॉरोली आपको स्टडी करना होगा, क्योंकि सी you will get a brief introduction about the program at that a specific website on that Erasmus Mundus catalog. But apart from that, you have to go and check the details about the program at each specific university. So तो चारों भी यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पर जाके आपको वो प्रोग्राम क्या ऑफर करना चाहता है, यू हैव टू गो थ्रू दैट, एंड यू हैव टू हमें आपको लिखना होगा कि किस तरह से ये सारे जो मॉड्यूल्स है वो आपके इंटरेस्ट से अलाइन करते हैं। एंड यू हैव टू, अगर कोई प्रोग्राम फैकल्टी हो दैट whose research you might find interesting, आपके इंटरेस्ट से कुछ अलाइन होता है, तो you should also mention his name, that you have to कुछ किस तरह से कोलैबोरेट, यू हैव टू कोलैबोरेट विद दैट प्रोफेसर, और इन सारी चीजों का आपको ये उस एसओपी में आपको लिखना होगा। सो ये जो चीजें हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर इरास्मस मुंडस प्रोग्राम। और लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि आप जब इन सारे प्रोग्राम को अप्लाई करते हो, तो देयर इज अ यूनिक, आई मीन अ कॉमन पोर्टल। सो और इस प्रोग्राम के लिए आपको किसी भी एक कुछ लिमिट नहीं है। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अ लिमिट दैट यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर 3 or 4 प्रोग्राम्स, बट नाउ देयर इज नो सच लिमिट, एंड यू कैन अप्लाई फॉर एज मच एज, आई मीन जो प्रोग्राम आपको करने हैं उन सारे प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट हियर यू नीड टू understand that you can't upload the same statement of purpose or same CV. I mean, the CV will work, but you can't upload the same statement of purpose, motivation letter for all the programs, because as I mentioned, that every program have different modules, and you have to draft your SOPs, your motivation letter according to the requirement of that program. So आप अगर 10 भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, 20 भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग दैट रिक्वायर्ड एंड स्पेसिफिक चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम। सो ये सारी एक ओवरऑल हमें इरास्मस मुंडस के बारे में एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन, एक आपको एक अंडरस्टैंडिंग आने के लिए ओवरऑल एक प्रेजेंटेशन मेरा था। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपके भी कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लेंगे। फिर आफ्टर दैट कुछ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, चैलेंजेस क्या रहे हैं, और अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स क्या चीजें हमें इस ओवरऑल जर्नी से मिलती है, वो क्वेश्चंस के साथ साथ विल डिस्कस। Okay, so let's start. Um,
If you have any questions, you can ask here. You can write in the chat box as well. Bodhi will respond. Try to keep your question as brief as possible so that we can cover many more questions. But my question is, does freelancing work count as experience while applying? So can I add that? Yeah, so I just wanted to ask, you mentioned internships, that Right. we can mention our internships, but what Right. about freelancing experience? Is that counted as experience? I think yes. So it's if it's related to what I mean, the program you are applying to, or it is if it's connected with what you have done and what you're working on and applying for the program, I think this will count as an work experience, your freelancing experience as well. Okay, so like I am looking for design degree basically. So Okay. there are a few courses, Okay. and I have experience, but in different segments of design itself. Okay, Uh, that's fine. But yeah, it is related to that umbrella, what is yeah, design, right? yeah, yeah. Okay. So yeah, that will definitely count. So suppose you are talking about the law one and I am talking about the engineering, but I think the process is same for both Right, to right. get Yes, scholarship or yes, different yes. No, for no, the different. process is same. The process is same. In this entire session, I have mentioned the process that I mean, and it is applicable for all the programs that is specifically mentioned at that catalog. So 200 courses that we just Yeah. gone through. So the process is same, but the requirements might be different. So so at every I mean website, you'll find a how to apply tab, and if you go on that tab, you will find all the details. So before going to the application process, you will get the all the requirements and everything. So just try to fulfill that requirement, and a procedure is you just have to upload that documents. Question from Dharmendra: do we need to submit the IELTS score at the time of application, or it can be submitted later? So it also depend on the program, but for my program, and I think for majority of the program, so you have to upload the IELTS score at the time of application. But you can write to the university, or there is a program coordinator for each program. You can write to them and ask for some kind of relaxation. So if you're waiting for score and you have already appeared the exam and you are waiting for the scores, you can just write them that I am waiting for my scores, and is it possible if I upload that my whatever scores after the deadline? So it also depends on the program which you're applying for, because yesterday only a friend of mine, she emailed them about, because she was also waiting for her scores. So she emailed, and but they said no, because you have to upload everything at the time of application. So you have to check it, the website. So also one thing I think I missed it, because many programs also will give you waiver for the IELTS score if you have done your bachelor's degree and have a good command or English, or good experience in institution that is fully function in English. So you can definitely get a waiver, but many programs, they have their specific criteria. So one specific criteria for my program was or the only criteria for waiver was, if you have done your primary education in CBSE school, only you will get a waiver for that program. So I did my primary school from Navodaya Vidyalaya, and I got a waiver for my program. And also I showed my other experience in Supreme Court and my 5 years of law course, and so that count in that process. I have three questions, Bodhi. Yeah. So what is the age limit for this? So is it mandatory to provide IELTS score, or can we provide MOI? So as my this thing career, as my this thing academics, I have completed my masters in 11 years before. And now and I'm applying for gender studies program. And is it accessible? This scholarship is accessible with the non-English speaking European countries as well. Yes. Okay. So first, your question, as I mentioned during my presentation as well. So there is no age
restriction for this program. So as I mentioned in my cohort, my colleague was above 60 years, so age is not a bar. Second question, medium of instruction and IELTS. So it depends. But nowadays, many of these universities are not accepting your medium of instruction certificate. So they're asking for your IELTS score, and as I mentioned, there are few criteria that are mentioned in the website. That, for example, that I mentioned now, the CBSE wala requirement. So if you have done your primary education in CBSE, then you will get a waiver. So not every university will accept your MOI. So you have to first write to them, try to get a waiver before you apply to this program. So you can use this strategy. You can write an email to them before you apply and ask if that works. You don't have to apply, I mean, upload that IELTS score if they accept your MOI. But I think now they are very strict with this English requirement, and I think you have to go for it. And what was your third question about? On English-speaking European countries, is it I accessible? mean, all these programs are in English. So So no. If I'm joining an institution in Spain, so I'm able to access this scholarship. Yeah. So see, my in my program, the country was Spain, Sweden, Norway, and so Spain is not Spain is a non-English country, but our programs are designed in I mean, our programs are in English. So that is not something that will stop you from applying. So our program is I mean, even the university is fully running in their local language, but that will not affect us. Our program will in English, our faculty will in English. And so what I have mentioned earlier, we are not applying to the university, we are applying to the programs. So which is specifically designed in English. So you don't have to bother about the country, about their languages. So they will definitely offer you the courses to learn their languages. For me, they offer us a free course to learn Spanish in Diosto in Spain. So I'm currently in my 4th year. I'm to do LLM. When should I start applying for the same, and when should I take IELTS? So it's a question from Mohawk. So yeah, as I mentioned, you can still, I mean, their basic criteria for the application is you should have your bachelor's degree. So you can also apply when you are in your 5th year, your final year. But I would suggest you to get an experience of at least 2 years, because I've seen a lot of people going directly after their graduation, and they don't have that kind of understanding to contribute in the classes. So this when you go into these universities, there is not just teaching and I mean learning process between the professors and the students. It's you as a student, you as a scholar, you have to contribute in that kind of discussions which happens in your class. You have to give your own perspective. You have to generate your own different kind of perspective and relate with that kind of principle, the theories that we are learning there. So you get that kind of understanding when you have a good experience. So I applied for this program after gaining 2 years of experience. So and also not did the internship of work I have done only for getting this a scholarship, because a lot of people, when I got this scholarship, were texting me, were calling me and asking me where should I do the internship to get this scholarship. I think that is a very, very wrong strategy. So this is not something you have to achieve. I mean, this should not be, the getting scholarship should not be your ultimate goal. I mean, it's a part of journey. It's a part of realization. So I mean, when I was working at the grassroots, I went to Supreme Court, and then I realized that to मेरे काम में भी और उसको आगे बढ़ाने के लिए, I think I realized that I should now go to this universities and get that kind of exposure. So it's a process of realization when it comes to the application and going abroad. So
I would strongly suggest to get at least 1 year of experience. And while doing that internship or working with any organization or lawyer, while working with him, you can, or with him or her, you can start applying for this program, and should go for IELTS, because IELTS score valid for 2 years. So you can plan accordingly. I am currently in my bachelor's second year of blockchain technology. Right. So I'll be completing this course in 2018, which is honors. So 3 years of blockchain technology course, and then fourth year is for honors, which I'll be For completing. honors. Right. Yeah, it's honors. That's what they have told me. I am in DOT Savitribai Phule University itself. Okay. So I would like to ask, like, if I'm gonna apply, are there positions available, like basically scholarships available for blockchain technology, particularly in European countries? Particularly in Blockchain. Okay. So you have to check the catalog. Okay. And so, Okay. sir, will the procedure will be same for blockchain Right. technology as well? Procedure will be same. Just go for this. Go through that catalog, and definitely they might have some programs on blockchain. So yeah, I mean, for engineering, I've seen a lot of people. So they have, how do you say it? I mean, many of them were very fresh graduates, so they immediately apply after completion of their bachelor. So for this STEM program, I think they do consider our application, and there is a good chances of also getting into this Erasmus scholarship if you have done a good internships while doing your bachelor's, because this countries, let's say Denmark, Finland, Austria, or Luxembourg, they need workforce. I mean, and they don't have this kind of sorry, is it possible? So yeah, कई सारे जो इंजीनियर्स है हमारे, तो वो जो वर्कफोर्स है वो उन्हें लगता है. सो मुझे लगता है कि if you're planning for any engineering program, so अगर experience भी नहीं है, and if you're gaining good experiences during your experience in your bachelor's, आप अप्लाई कर सकते हो. सो सोशल साइंसेस, लॉ, और ये मुझे इंजीनियरिंग में ये थोड़ा मैंने जब देखा काफी वहाँ स्कॉलर्स को, ये सारी चीजें मुझे थोड़ी वहाँ दिखाई दी. Okay, so I should first look for some internships as long as I'm in bachelor's year, Yeah. and then I can. Yes, go for again, it. good experience while working. So you might know Gaurav Somvanshi is also expert in blockchain. He has his office in Bombay. You can write to him. Is it mandatory to return to home country after completing the course, or we can stay back and look for the work opportunities there? No. You don't have. There is no such requirement for Chevening and other scholarship. There are such kind of requirement for, but for Erasmus, there no such requirement that you have to come back to your home country. Many people, mostly from this STEM background, they look for the jobs and try to get jobs there. So that is not a requirement. So you can go for PhD, you can look for jobs, and you can do whatever you want, because some countries, they might also they might offer you the job visa and to stay back in their countries. So that is I mean, एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है इस इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप का है, जो आपको मैंडेटरी नहीं है इंडिया. Sir, last question. So there are so many universities, and we are going to study in different countries. Right. So which country we can apply for the post-study work visa? Is there any particular rules that I can apply on in one country or any particular country? Is there any rule? Okay. So you have to be a bit do this application process bit strategically, because sometimes आपका जब fourth semester हो, जो dissertation का होता है, so for my program ऐसा था कि you can go in any other country, I mean any country you want. So जो मेरे program के cohort में थे, so कुछ universities, so कुछ country का ऐसा होता है कि if you are studying for 1 year, so वो आपको post work visa देते हैं. So अगर आपके प्रोग्राम में अगर ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि जहां आप लास्ट ईयर में आप 6 महीने रहकर 1 ईयर का टाइम स्पैन कंप्लीट कर सकते हो, तो
वो वहां जाने के बाद आपको थोड़ा स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि 4 में से कोई भी कंट्री हो, अगर आप वहां पर पढ़े हो तो वो आपको कंसीडर करते हैं। पर कैसा होता है कि यूजुअली आप जब एप्लीकेशन करते हो तो यू अप्लाई फॉर द फर्स्ट कंट्री ऑफ योर मोबिलिटी, मतलब जिसमें आप, जैसे मेरे स्वीडन में जाना था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर वाज इन स्वीडन, सो अप्लाई फॉर द वीजा फॉर दैट कंट्री, सो रेसिडेंस परमिट फॉर स्वीडन। सो फिर स्वीडन में आपको वीजा, वर्क वीजा मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, बिकॉज यू हैव दैट रेसिडेंस परमिट ऑफ दैट कंट्री। सो जो फर्स्ट आपका जो कंट्री होता है उसके थोड़े चांसेस आपको ज्यादा होते हैं, बट स्टिल यू हैव टू चेक दिस इमिग्रेशन एंड बाकी ये जॉब का जो रिक्वायरमेंट्स होता है, बिकॉज दे कीप चेंजिंग देयर रिक्वायरमेंट। सो आप जब जाओगे थोड़ा उस चारों यूनिवर्सिटीज का, चारों कंट्रीज का एक बेसिक आप अंडरस्टैंडिंग कर लो, और बाकी आप डिसाइड कर सकते हो कि वेयर यू वांट टू गो एंड कहाँ अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती है। I have a question, Budi. I mean, like, let's imagine I am Chevening scholar now, and or Okay. somebody who Yeah, has yeah, Commonwealth scholarship, and now I think I want to apply for Erasmus yeah. Mundus. Is that possible? Mhm. Yes, yes, you still can apply. Oh, I can The only apply. requirement, yeah, you can apply. You should apply. And but yeah, there only thing is only जब आप यूरोपियन कमीशन का जब फंड नहीं लेते हो, अगर आपने पहले नहीं लिया तो then you can apply because you are funded by FCDO UK government, so वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, you can still apply for this Erasmus Mundus program. Yes, yes. So एक बेसिक चैलेंज मुझे लगता है कि बहुत लोगों को लगता होगा कि 6 महीने एक कंट्री में रहना होता है। सो कई लोगों को मुझे लगता है मोबिलिटी एक चैलेंजिंग पार्ट है, पर वो मुझे नहीं लगा, क्योंकि 6 महीने के बाद आपको डिफरेंट दूसरे कंट्री में जाना होता है। सो इट फॉर मी इट वाज नॉट अ चैलेंज, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप किस तरह से, किस पर्सपेक्टिव को इन सारी चीजों को आप देखते हो। तो कई लोगों के लिए ये चैलेंज था, पर मेरे लिए नहीं था, क्योंकि आपको ये बेसिक चीजें होती है, यू हैव टू लुक फॉर हाउस, यू हैव टू लुक फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिस्टिक, आपको ये करती होगी। वो दैट वाज नॉट माय प्रॉब्लम वाज इमोशनल प्रॉब्लम, बिकॉज even I stay for a couple of months in any place, I get very emotionally attached to that place. So छोड़ना मेरे लिए बहुत ही एक चैलेंज था मेरे लिए, but overall logistic and this mobility kind of looking for houses and that stuff was not a challenge for me. एक स्टूडेंट की तरफ से रिसेंटली क्वेश्चन आया था। तो जैसे यू सेड कि जो हमारे जो एसओपीज है, इसका मोटिवेशन लेटर है, तो ये आपको Yes. पर्टिकुलर कोर्स के लिए मिलेगा। तो लाइक डू यू हैव एनी फॉर्मेट ऑफ दैट? क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने मेरे को भी रिव्यू करने के लिए भेजे हैं मोटिवेशन लेटर, तो दे आर जस्ट जेनरिकली राइटिंग, बट ऐसा कोई प्रॉपर गाइडलाइंस है जो इरास्मस में मिलता है? नहीं, ऐसा स्पेसिफिक कोई गाइडलाइंस नहीं है, बट दे विल मेंशन, बट प्रोग्राम वाइज है। माय फ्रेंड शी इज अप्लाइंग फॉर दैट व्हिच कोर्स, theater and social justice, something related to that, and for her SOP there are clear guidelines and specific questions for the SOP. So it depends आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो बेसिक जो भी जो मैंने बताया वही उसके भी रिक्वायरमेंट में था कि ये 3-4 चीजें उनमें होनी चाहिए। I want to ask, I'm also student of Navodaya, and till my 10th, I studied my all subject in English, but in plus 1 and plus 2, I choose humanities and my all subject in Hindi. So, can I get that waiver in IELTS? So you did your bachelor's in Hindi medium? No, sir. Huh? Not bachelor, not bachelor. Plus 2, plus 1 and plus 2. Okay, no, that's not an issue. मेरा भी even for my Navodaya we have plus 1, plus 2 in Hindi and rest in Marathi. So that is not Yes, an sir. issue. You can get a Till because 10th, they're till only 10th my all subject in English, but in plus 2 and plus 1, I choose humanities, so I choose Hindi for that. okay. Yeah. But okay, because they have not specifically mentioned, because see, this is for my program. I was talking about my program. So not necessarily this waiver thing, I mean what CBSE wala will not applicable to all other programs. So
it's only was specific for my program, so you have to check it. But they were only asking for that कि आपका एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन सीबीएसई में हुआ है या नहीं हुआ है. So that was the only question. They didn't ask you for English में हुआ है या हिंदी में हुआ है. So yes, you done your studies. I mean in CBSE school, so that will count. Okay. I think I have a question related to law. Can I? Yeah. So after my 12th, I also apply for the मतलब CUET or Central University. So, but I don't get that because of some financial conditions. Okay. So I am pursuing my law graduation in local university. This is not very good, classes. So can I do something else with the classes, just like internships? Okay, so you are currently you are pursuing law. Yes, sir. Bachelor's, BLLB. 3 years or 5 years? Yes, sir. 5 years or 3 years? 5 years, sir. BLLB. Okay. In which year are you studying now? Second year, sir. Okay. So yeah, you should go for internships जब भी vacations, मतलब vacation in the sense कि जब कोर्ट को vacations नहीं होते, try to go to Delhi, जहाँ भी आपका हाई कोर्ट है वहां पर जाने की कोशिश करो. अभी फर्स्ट सेकंड ईयर में तो I would suggest you to go and look for some good organization working in law and advocacy. जैसे गुजरात में है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, मध्य प्रदेश में है एक police accountability project by Nikita Sonavne, and there are multiple organizations across the country कि जहां आप ये organizations में जहां आप काम कर सकते हो. तो उसके साथ साथ आप ये काम करते करते कोर्ट्स में भी फिर बाद में थर्ड ईयर से आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो. सो कॉलेज तो आपको अगर रेगुलर नहीं हो रहा है, ये अगर दिक्कत है तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी. I am a regular, sir, but the classes were not going on every day. ठीक है. आपको ये सारी चीजें फिर ये एक्सपोजर लेने की आप कोशिश करिए. जजेस के पास इंटर्नशिप कीजिए. आफ्टर व्हेन यू आर इन थर्ड ईयर, ट्राई टू गेट ईमेल आईडीज ऑफ द जजेस एट द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. वो आप करिए और डायरेक्टली गो टू द चेंबर्स इन हाई कोर्ट एंड गिव योर रिटन एप्लीकेशन. एक कवर लेटर और सीवी के साथ डायरेक्टली जा सकते हो. सो कुछ अपनी तरीके से भी हमें एफर्ट्स लेना पड़ेगा. सर यूनिवर्सिटी का मतलब वो कोई होता नहीं, क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो थोड़ी सी मतलब उसका मतलब नाम नहीं है, थोड़ा सा वो अच्छी नहीं है. कोई दिक्कत नहीं. लोकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है. आप अगर अपना काम अच्छा दिखा रहे हो तो यूनिवर्सिटी के नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. इफ यू शो यू आर अ गुड कैंडिडेट और आपको अच्छा पढ़ना है, आप में मेहनत लेने की क्षमता है, अगर वो आगे वाले को दिख जाता है तो कॉलेज डजंट मैटर आप किस कॉलेज से आते हो. थैंक यू. संतोष. ओके. थैंक यू दादा. थैंक यू प्रशांत भाई. तर मुझे एक क्वेश्चन है कि आई एम प्लानिंग टू अप्लाई फॉर मास्टर इन environment policy and management for the University of England, Manchester and University of Austria and Central European University. But मुझे थोड़ा ये जानना है कि बेसिकली जब एप्लीकेशन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एक्सेप्ट YOLR, ट्रांसक्रिप्ट and statement of purpose, and like what kind of students or scholar they are expecting, and what is the landscape for this kind of program, environment policy and management. The program revolves around climate change, sustainability and like these themes. And currently just थोड़ा मेरा बैकग्राउंड रहता तो मैं फर्ग्यूसन से ग्रेजुएट हूँ और APU से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है विद प्रशांत ओनली, प्रशांत पाशर. तो अभी इसमें ग्रेजुएशन का ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करना होता है, राइट? तो इस प्रोग्राम के लिए दे आर सेइंग दैट वी कैन कंसीडर वेवर फॉर IELTS. आई मीन वेवर वी कैन कंसीडर ग्रेजुएशन इफ यू हैव कंप्लीटेड इन इंग्लिश एज अ वेवर. तो उस पर थोड़ा रिफ्लेक्ट करना है. थैंक यू. ओके. सो यस, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स एज सच नहीं होते, बट वही आपको मांग सकते. फॉर मी दे आस्क्ड मी फॉर रेसिडेंस का डॉक्यूमेंट. सो मुझे एक एफिडेविट करके मुझे एक डॉक्यूमेंट देना पड़ा. मेरा जो एड्रेस है
गढ़चिरौली का, उसको उनको एक किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चाहिए था, तो हमारे मैंने नगर पंचायत से मैंने वो एक इंग्लिश में ड्राफ्ट बनाकर उनका स्टैंप वगैरह लेकर मैंने वो डॉक्यूमेंट दिया था। वो बेसिकली वही एक डॉक्यूमेंट था अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर। सेकेंडली आपका तो अच्छा एकेडमिक एक ये है फर्ग्यूसन, उसके बाद एपीयू, सो कैसे कैंडिडेट को वो कंसीडर करते हैं? डेफिनेटली वो इरास्मस मुंडस प्रोग्राम बेसिकली ग्लोबल साउथ के लिए ही स्पेसिफिकली ये सारे प्रोग्राम्स है, सो अपना ही रिप्रेजेंटेशन इसमें ज्यादा होता है। तो इसमें भी अगर हमारी और हम डाइवर्सिटी बताते हैं, क्योंकि जब इंडिया से भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, पर हाउ वी स्टैंड एज अ डिफरेंट कैंडिडेट, आपका फिर सोशल पोजिशनैलिटी, आपका लोकेशन, ये सारी चीजें भी जब आप एप्लीकेशन में मेंशन करते हो दैट मैटर्स। क्योंकि जब बाकी सारे एप्लीकेशन, आज तक के जो एप्लीकेशन इरास्मस मुंडस में आए मेरे प्रोग्राम के लिए, दे ऑल वेयर फ्रॉम दिस एलिट एंड अपर कास्ट कम्युनिटीज। सो वही होता है कि जब हम ये सारी चीजें मेंशन करते, क्योंकि आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज मेरे सिंपोजियम में it was specifically mentioned by our the selection committee members that we are sorry and we feel shame that there is not a single candidate from the Adivasi community from India for this program. So क्योंकि उस तरह के शायद एप्लीकेशंस उनके पास नहीं गए हो, या फिर आज तक आदिवासी कम्युनिटी का कोई एप्लीकेशन उनके पास नहीं गया हो, तो इस साल अगर मेरे प्रोग्राम के लिए कोई आदिवासी कम्युनिटी का अगर स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, तो आई थिंक he has a good chance of, so ये सारी डाइवर्सिटी आपकी पोजिशनल की जो डाइवर्सिटी वो तो कंसीडर होती है, पर वो ऑब्वियसली आपका जो एकेडमिक रीगर क्या है, उस चीजों का अंडरस्टैंडिंग क्या है, और वो आपके एसओपी से तो रिफ्लेक्ट हो गई, आपके वर्क एक्सपीरियंस से भी वो रिफ्लेक्ट होता है। सो ये सारी चीजें, मतलब अगर वर्क एक्सपीरियंस भी मेंशन नहीं है, तो वो आपके वर्क एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा उसको वैल्यू है, उसको ज्यादा मार्किंग से आपके वर्क एक्सपीरियंस के लिए। सो ये सारी चीजें वहां कंसीडर होती है, ऐसा मुझे लगता है। और जो क्वेश्चन था कि वेवर का, राइट? यस यस, हाँ, सो अगर मास्टर्स का अगर वेवर हो तो दैट्स वेल एंड गुड, आपको तो वेवर मिल जाएगा ना फिर। ओके। आणि और एक मुझे इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन पूछना है कि एक सेकेंड ना, मैं पॉज लेके सर मैं गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BA कर रहा हूँ, 4th ईयर स्टूडेंट हूँ, और सर मैं आदिवासी स्टूडेंट हूँ उड़ीसा से। ओके। हाँ सर, एक्चुअली मैं इस LLM के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। अच्छा। इरास्मस मुंडस में आपका हेल्प चाहिए सर, गाइडेंस चाहिए मेरे को। अभी किस ईयर में हो आप? और सर मैं 6th to 10th मैं प्राइमरी एजुकेशन CBSE से किया हूँ। नहीं, अभी आप किस? और सर मैं एक कोर्स के लिए ह्यूमन, सर मैं 4th ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। ओके, ठीक है। तो आप सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, नहीं ठीक है। मेरी सर मैं BA LLB 4th ईयर स्टूडेंट हूँ, और ओके, गॉट इट। सो अभी आप 4th ईयर में हैं, तो मुझे लगता है कि आप और अपने एकेडमिक्स में भी आप ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब आप उसमें भी और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करिए, और जितने अच्छे इंटर्नशिप्स आप कर सकते हैं, वो नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग स्कॉलरशिप। मैं पहली और सबके लिए यही बता रहा हूँ कि स्कॉलरशिप के लिए इंटर्नशिप मत करो। तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, तुम्हें जो आगे करना है, क्या स्किल्स तुम्हें चाहिए है खुद के ग्रोथ के लिए, वो इंटर्नशिप्स तुम अभी करिए, और उसको फिर आप जब भी आपको स्कॉलरशिप के इस प्रोग्राम्स के लिए जाना है, तब उन चीजों को आप रिलेट करिए। तो मेरा आपको यही एक सजेशन होगा कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बैचलर्स, आप एटलीस्ट 1 ईयर का आप शायद आप मुझे सुन पा रहे हो, नहीं तो हम बाद में ईमेल पर भी आप ईमेल कर दीजिए। तो यही एक चीज है कि आप उसके बाद भी आप सर सुन रहा हूँ। हाँ सर, ईमेल पे, लिंक्डइन पे बात कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। ओके, ठीक है संतोष। तो ये यस, तो जैसे बोधी दादा, मैं एक नोमैडिक ट्राइब फैमिली से आता हूँ, तो बेसिकली मुझे पूछना है कि आई एम प्लानिंग टू
जैसे उन्होंने पब्लिकेशन भी उसमें मांगा है कि डू हैव एनी पब्लिकेशन, राइट। तो एज सच मेरा रिलेवेंट इंटरेस्ट है उसके ऊपर तो पब्लिकेशन कोई नहीं है, मतलब ऐसा कोई पब्लिश्ड वर्क नहीं है, तो इस पे एक बार बताना। और सेकंड जो डॉक्यूमेंट आपने बताया, तो ये बर्थ सर्टिफिकेट का कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपने घर से किया है? नहीं, वो बस एक सिंपल डॉक्यूमेंट एक फॉर्मेट में लिख देना, उनको बस रेसिडेंस का प्रूफ चाहिए था। ओके। ये तो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो सारे होते हैं वो मराठी में होते हैं, सो एक जस्ट आप लेके जाओ, एक पेज में आप लिख लो कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट संतोष पंडित इज परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस प्लेस, सो एक स्टैंप ले लेने, बस दैट्स द सिंपल प्रोसेस। तो पब्लिकेशन का ये है कि हाँ, मैं सबके लिए भी बताऊंगा जो भी पढ़ रहे हैं या फिर अप्लाई करने वाले हैं 2-3 साल में, तो पब्लिकेशंस, रिसर्च होना, मुझे आपके राइटिंग्स होना, मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बट अगर वही संतोष आपके लिए भी ये है कि अगर आपके पास नहीं है पब्लिकेशंस और अभी अगर अप्लाई कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो आपका ऐसा कोई एप्लीकेशन में कोई बाधा नहीं डालेगा वो, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपका एकेडमिक्स अच्छा है, ये अगर सारी चीजें आपके पास है, अगर पब्लिकेशन नहीं है तो भी मतलब आपका एप्लीकेशन कंसिडर हो सकता है, इफ यू हैव बाकी जो रेस्ट जो चीजें अगर आप उनमें अच्छे हो तो। यस, जस्ट लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ क्लैरिफिकेशन चाहिए कि जैसे वर्क एक्सपीरियंस, जैसे मैं अभी 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस कंप्लीट कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ काम करती है बेसिकली, तो ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करना पड़ता है क्या, जैसे? नहीं ऑफिशियल? यस, बहुत विश्वास रखते हैं वो सारे लोग, प्रशांत को भी पता है, क्योंकि वो शेवनिंग करो, किसी के लिए भी आप अप्लाई करो, दे डोंट आस्क यू फॉर योर वर्क एक्सपीरियंस का लेटर, वो नहीं मांगते। ओके, थैंक यू सो मच। आप एसओपी, सॉरी, यू कैन टेक इंटरव्यू। हाँ, so yeah, for important question, interview it depends on the program wise, तो कुछ प्रोग्राम के लिए इंटरव्यूज है, कुछ प्रोग्राम के लिए नहीं है। कुछ प्रोग्राम में ऐसा भी होता है कि अगर आपके एप्लीकेशन से अगर कभी सेटिस्फाई नहीं होते वो, बट दे वांट यू टू कंसीडर फॉर दिस स्कॉलरशिप, वो इन दैट केस दे कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। सो और कुछ प्रोग्राम में इट इज स्पेसिफिकली मेंशन ऑन देयर आई मीन देयर सिलेक्शन प्रोसेस कि आफ्टर सबमिशन ऑफ दिस यू हैव टू गो थ्रू दिस इंटरव्यू राउंड। सो ये भी प्रोग्राम पे डिपेंड करता है और सिलेक्शन कमिटी का जो डिस्क्रिप्शन होगा उस पर ये डिपेंड करते हैं ये सारी चीजें। So, sir, I want to ask, you suggest me to do internship with judges. How can I apply? There is any government website or anything? No, there is no government website for this. You have to build a good network while you are studying in the law school, and you can only build this network if you show you have that kind of competency, and if you show the willingness to work with that kind of people. So अगर आप में ये सारी चीजें होगी तो if you go to any lawyer और judges, तो आपको वो लेंगे, क्योंकि see, even I don't had any kind of experience, I mean in terms, I mean no networking, nothing, but मुझे करना था, then I joined, I know how I use my networks, कि मुझे पहचानते भी नहीं थे लोग, but I still try to contact them on LinkedIn and whatever mediums I have, and then still I secure internship with our former Chief Justice. तो ये सारी चीजें हैं, वो हमें नेटवर्किंग और इन सारी चीजों का ये करके होना पड़ता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी सिटी में आप पढ़ रहे हो, वहाँ के अच्छे लॉयर्स ढूंढो, जाओ उनके ऑफिस में, एक अच्छा कवर लेटर लिख लो, अपना सीवी उनको दे दो, और क्या क्या काम करना है, क्या आपके एस्पिरेशंस है, उनके साथ डिस्कस करो, ओपन अप हो, बोलो उनके साथ क्या करना है, आप में क्या स्किल्स है वो उनको दिखने दो। ये सारी चीजें काउंट होती है आपको जब अगर इंटर्नशिप चाहिए इस लॉ फील्ड में, तो ये सारे नेटवर्किंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही आपकी शुरुआत होगी, आपको किसके तो भी अप्रोच होना ही पड़ेगा पहले। सो वहां पर एक कोई ऐसा कॉमन ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसके थ्रू आप जा सकोगे। सो यहाँ पर स्ट्रगल बहुत है, तो पर इजी है वे अगर तो करना है तो। सो ये सारी चीजें हैं। आई मीन वही है जो बोधी बोल रहा है कि आपको ये बहुत लंबा जर्नी है वैसे, इसलिए तो अभी when Bodhi was saying don't just apply for, don't just do anything for this scholarship, rather आपका ज्यादा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि मैं अपने स्किल, अपना नेटवर्क कैसे ग्रो कर सकता हूँ। जैसे if I see myself 3 to 4 years back, I was nothing,
when I entered into one of the university, वहां पे मेरे प्रोफेसर्स के साथ दोस्ती बनी, उनके कांटेक्ट से मैंने जैसे एक किसी बड़े पब्लिकेशन में आर्टिकल लिखना भी एक बहुत मारामारी है. यू हैव टू क्रिएट योर नेटवर्क, यू हैव टू क्रिएट आपका ओन इम्प्रेशन बनाना पड़ता है लोगों के ऊपर. और साथ ही साथ वो सिर्फ बनाने के लिए नहीं है, मतलब आपके पास वो स्किल, आपके प्रति बहुत चमक आनी चाहिए सामने वाले को समझने, वरना विदाउट स्किल, विदाउट एनी एफर्ट्स, विदाउट सिंसेरिटी आप किसी के पास जाओगे, नो बडी विल कंसिडर यू. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नेटवर्क करने के लिए भी Yeah, and देयर for शुड बी that सम you पार्ट. should read. हम्म. Right. And मतलब for यू आर all of गोइंग टू this, मी. you have to first read. I'm not. या यस, आई मीन आपका Yes. नेटवर्क भी जो है, Continue. किसी भी स्कॉलरशिप को देखो, लाइक व्हेन यू आर बेसिकली एंगेजिंग विद दिस प्रीमियम कॉन्टैक्ट्स जो अपनी फील्ड में कुछ तो महारत हासिल की है उन्होंने, बहुत एक्सपर्ट्स है. नाउ दिस पर्सन इज वेरी बिजी एंड यू आर गोइंग एंड यू आर हैविंग नो आइडिया व्हाट यू हैव टू डू, व्हाई यू आर गोइंग. तो उस पर्सन का भी टाइम वेस्ट होता है और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस रहता है, सो दैट वो फिर बाद में आपका अगर गलत इंप्रेशन चला गया तो बहुत डिफिकल्ट जाता है उनके साथ एंगेज करने, बिकॉज एट द एंड भाई पीपल आर बिजी, दे आर वर्किंग, दे आर टेकिंग देयर टाइम आउट. एंड अगर आप बहुत ही नॉन सिंसियर, अनसिंसियर तरीके से अगर जाते हो तो फिर बहुत डिफिकल्टी जाती है. इसलिए ऑलवेज whatever you're doing, do your homework, whatever available on the internet, watch videos, learn, read books. आपके फील्ड के ऊपर कुछ तो होना चाहिए जो सामने वाले को दिखे कि भाई this person knows something, this person has some idea of certain thing that that person want to do. So ये सारी चीजें मैटर करती है. I think it was, this session must have been very helpful for you. We'll hang up the session now. और again the final note is that कि please do follow SRC at different platforms. हम लोग LinkedIn पे भी है SRC network नाम से, we have Instagram SRC_networks. On YouTube you just search Savitribai Phule Resource Center, you will get our all of the lectures there. And at the same time you can follow us on Facebook. So all of the platforms we are there. And thank you all for joining. And अगर आपको कोई भी डाउट है, you can directly write to SRC so that we will collect all those doubts, and then we will have some recorded sessions on that. Also, if you are interested in supporting SRC, contributing in any way, if you want to volunteer with SRC, if you want to contribute financially, if you are in any specific city where we're working now, for example in Nagpur, maybe in Mumbai, Pune, Gadchiroli, Bhandara, Gondia, and Chandrapur. So all these districts we are working. So if you're interested, you can connect local centers. For that also you can write mail to us so that I'll connect you with all those centers. Thank you again. Thank you so much. And all the best, guys. Apply for the Erasmus Mundus, and I hope many of you get selected. Thank you. Jai Bhim.